Hello students, welcome to Educate. So today now we're going to start the new topic is here adjoint and the inverse of a matrix, right? Adjoint and inverse of a matrix. This I'm talking about, this. Adjoint and inverse of a matrix, right? हमने ये क्वेश्चन नंबर 4 कराया था, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट ना? और इसका आंसर भी आपको मैंने बताया था, दैट वाज x माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड z माइनस एक्स बताया था, राइट ना? सो द न्यू टॉपिक इज अबाउट adjoint and the inverse of a matrix, right? So let's first we'll discuss about the adjoint of a matrix, right na? Adjoint of a matrix, right na? Adjoint of a matrix, right? See, यहां से भी आपने देखो, the adjoint of a square matrix, the adjoint of a square matrix is defined as the transpose of the matrix this, right na? Where this is the cofactors of this, and the adjoint of a matrix is like this. If A is this matrix, so there adjoint of A is the transpose of this I'm talking about, right ना? मैं इसको यहाँ पे explain कर रहा हूँ. See, I'll say this is here the adjoint of a matrix A. शॉर्टकट में हम इसको ऐसे लिखेंगे A D J of J is equals to you say here transpose of cofactors A11, A12, A13. This is A21, A22, A23. This is here A31, A32, and here is A33 ka transpose. Mean when I'm talking about the adjoint of a matrix, so adjoint of a matrix is nothing but it's the transpose of cofactors. What I'm talking about? Transpose of cofactors. शॉर्टकट में आप ऐसे बोल सकते हो, adjoint of A equals to transpose of cofactors. This I'm talking about. Transpose of cofactors, right na? This is what it na? Transpose of cofactors, right? See, now this is here. So let's now going to start the questions, right? अच्छा, इसमें कुछ क्वेश्चंस भी होंगे यहाँ पे. सी लाइक दिस I'll remark here, right ना? For 2x2 matrix, right ना? Let's say A is a matrix whose elements are A11, A12, A21, and this is A22, right na? So when I'm going to find here the adjoint of the matrix A is nothing but the transpose of cofactors. क्या बोल रहा हूं जी? Transpose of cofactors. ये होगा. ट्रांसपोज निकालना मैंने पिछली क्लास में बताया था. You know Aij equals to -1 to the power I plus j times I plus j times of Mij. Is that correct na? -1 to the power I plus j times of Mij, right na? Got it? तो यहाँ पे आप निकालो A11 के, A11 हमारे पास क्या है? कोफैक्टर्स है. A11 दिस एंड दिस, तो इट्स A22 ना. और आपको पता है सर A11 जो होगा यहाँ पे A11 इक्वल्स टू -1 टू द पावर 1 प्लस 1 टाइम्स M11. बेसिकली माइनस निकालना होता है, और माइनस में क्या लगाना होता है? ऑड एंड इवन लगाना होता है. इफ द सम इज टू बी स्टडी वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी अबाउट कि अगर सम ऑड होगा तो नेगेटिव ऑफ माइनस विल बी द कोफैक्टर्स. अगर सम आई और जे का इवन होता है तो जो माइनस होते हैं वही क्या होंगे? आपके कोफैक्टर्स हो जाएंगे. क्लियर हुआ? तो यहाँ पे अगर आप A11 की बात करोगे यहाँ पे, है ना, A11
तो a11 में आप देख रहे हो यहाँ पे ना a11 इक्वल्स टू -1 टू द पावर I प्लस j टाइम्स m11, तो इसके माइनस हो जाएगा दिस, लाइल से इट्स a22। क्लियर हुआ? a12 बताओ जी, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम a21 होगा, लेकिन a21 माइनस होगा, कोफैक्टर्स क्या हो जाएगा -a21। ना समझ में पूछोगे, ठीक है। a21 बताओ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम a12 होगा, सब निगेटिव है निगेटिव के साथ आएगा। आई होप इट्स क्लियर ना। और a22 बताओ दिस एंड दैट, राइट ना। तो a11 एंड यू नो a22 इज, चूंकि सम पॉजिटिव है तो m22 के बराबर हो जाएगा, सो दैट हैज टू बी a11, ठीक है। सो दिस इज, लेकिन इनके हमने क्या करना होता है, ट्रांसपोज निकालना होगा। सो फाइनल दिस आंसर विल बी a22 minus a21, this has to be minus a12 a11। देख जाओ, डाउट है तो पूछो। फॉर 2x2 मैट्रिक्स, राइट ना, कोई डाउट वाली बात? देख जाओ, देख जाओ, इफ डाउट मस्ट आस्क, देख लो, ठीक है। डन, आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है। इसमें एक थियरम है, इट्स द गुड थियरम, इंपॉर्टेंट थियरम। मैं इसको एज ए रिजल्ट भी यूज कर सकता हूं या वेरीफाई भी करा के दिखा देता हूं आपको मैं। फॉर ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, है ना, थियरम फॉर ए ऑफ ऑर्डर n a is a square matrix of order n, right ना, it's given a times of adjoint of a, या adjoint of a times of a is equals to, it's very important, transpose of, sorry, determinant of a times I, this I'm talking about। a times of adjoint या adjoint of a times of a की वैल्यू कितनी होती है, determinant of a times I होती है जी, ठीक है। क्लियर है? देखो मैं इसको वेरीफाई करके दिखा रहा हूं, वेरिफिकेशन से A is a matrix of elements A11 A22। अच्छा यहां पे मैं फॉर 3x3 मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं, फॉर 3x3 मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32, this has to be A33, राइट। अच्छा इसके करस्पॉन्डिंग एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स, दिस आई से A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33 क्या क्या होगा, ट्रांसपोज होगा, राइट ना। मिनाल से है एडजॉइंट ऑफ ए जो होंगे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। क्लियर है? दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए। हमने प्रूफ करना है ए टाइम्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम्स ऑफ आई, राइट ना। ए टाइम्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, देखते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, and this is here A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32, and this is here A33, राइट। इनको मल्टीप्लाई करना होगा जी आपको। देखो A11 A11 क्लियर है, प्लस A12 A12 प्लस A13 A13 क्लियर है ना।
R1 इंटू C1 हो गया, R1 इंटू C2। अच्छा ये पिक्चर देख रहे हो, यहाँ पे A11 और A21 दिख रहा है, मतलब जो आपके पास एलिमेंट है उनके कोरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स यहाँ पे नहीं है, तो डायरेक्टली मैं इसका आंसर 0 लिख दूं। कोई गुस्सा करने वाली बात? पक्का गुस्सा नहीं करोगे? 100% समझ में आ गया? मैंने कल बताया था कि इफ सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ रो विद कोरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स will be the determinant of the matrix, otherwise that value comes to be equals to 0। मतलब आप जो एलिमेंट ले रहे हो अगर उनके कोरेस्पॉन्डिंग को फैक्टर्स के प्रोडक्ट का सम लेते हो तो आपको डिटर्मिनेंट मिलता है, अदरवाइज इरिस्पेक्टिव ऑफ स्मॉल aij विद कैपिटल aij विल गिव दिस आंसर विल बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आप देख रहे हो सर A11 को कैपिटल A21 से मल्टीप्लाई करते हुए टाइम पे पहला ही एलिमेंट 0 हो गया, तो मैं डायरेक्टली 0 लिख दे रहा हूं। अच्छा आप ये भी देख लो, जब R1 को C3 से मल्टीप्लाई कर रहे होगे तो A11 कैपिटल A31 से मल्टीप्लाई करते समय इसका आंसर 0 दे देगा। क्लियर हो गया? फिर A21 को इसके साथ जब करोगे ना, R2 को C1 के साथ, आंसर इसका 0 हो जाएगा। लेकिन जब R2 को C2 के साथ करोगे, देखो मैं लिख दे रहा हूं R2 इंटू C2, हियर इज A21 प्लस A22 कैपिटल A22 A23 कैपिटल A23। होप इट्स क्लियर? समझ में आ रही बात? पक्का नहीं समझ में आ रहा है? आ रही है समझ में? ठीक है, देखो थोड़ा सा इसको मैं और आगे करके लिखता हूं। दिस इज हियर A23 विद कैपिटल A23, राइट ना? और यहां पे होगा 0, यहां पे होगा 0, और यहां पे जब आप निकालोगे तो दिस इंटू दैट, मतलब R3 इंटू C3, यहां पे मिलेगा A31 प्लस A32 इंटू A32 प्लस, जस्ट अ सेकेंड, एक कॉल आ रही है जी। सॉरी एक कॉल आ गई थी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो नाउ दिस इज राइट, क्लियर है? राइट ना? आगे तो इसका आंसर हो जाएगा A टाइम्स एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 0 0, एंड दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ A। इवन अगर आप इससे डिटर्मिनेंट ऑफ A कॉमन लेते हो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, this has to be determinant of A times of I। clear? So here is now A times of adjoint of A, right ना? देख जाओ, ये वेरिफिकेशन था जी। गॉट इट? कोई डाउट? आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा थियरम था, एज अ पोस्टुलेट यूज कर सकते हो। A टाइम्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A टाइम्स ऑफ I, या यू में से एडजॉइंट ऑफ A टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A टाइम्स ऑफ I। नेक्स्ट यहां पे अच्छा, सिंगुलर मैट्रिक्स मैंने आपको पहले ही बता रखा है, अगर नहीं बताया होगा तो जान लेना कि स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी द सिंगुलर मैट्रिक्स इफ इट्स डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0। यहाँ पे लिखा हुआ है, देख रहे हो ना यहाँ पे,
This I'm talking about, right now. A square matrix is said to be the singular matrix if its determinant equals to 0, right ना. So टाइटल लिख सकते हो यहाँ पे singular matrix, right ना. Directly I'll say determinant of A equals to 0 for every A is a square matrix. Clear है. A should be the square matrix. Clear है. ये क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए. क्लियर है ना. आगे बढ़े. अच्छा, सिंगुलर के बाद अगर मैं नॉन सिंगुलर की बात करूं, नाम से ही लग रहा है जो सिंगुलर नहीं होगा वो क्या होगा? नॉन सिंगुलर, राइट ना. नॉन सिंगुलर में डिटरमिनेंट ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0. क्लियर है ना. यहाँ पे लिखा हुआ है, सारे डेफिनेशन आपके पास यहाँ पे है. आई स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर इफ इट्स डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0, राइट ना. सॉरी जी, एक और कॉल आ रहा है इंपॉर्टेंट, सॉरी. हेलो. यस, सो क्लियर हो गया. नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और सिंगुलर मैट्रिक्स हमने देखा, राइट ना. नेक्स्ट है, हियर इज नाउ नेक्स्ट थ्योरम. If A and B are two non-singular matrices of the same order, then AB and BA is also be the non-singular matrices of the same order. Obviously, the correct result है कि if A non-singular है और B भी हमारे पास क्या है? नेक्स्ट रिजल्ट है, राइट ना. B is also be the non-singular, राइट ना. अगर ए भी नॉन सिंगुलर और बी भी नॉन सिंगुलर है तो ए बी क्या होगा? ए बी इज ऑल्सो नॉन सिंगुलर होगा. इवन बी इज ऑल्सो द नॉन सिंगुलर, राइट ना. ए बी क्या होगा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा. नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट ना. क्लियर है. अगला रिजल्ट, नेक्स्ट रिजल्ट यहां पे मैं लिखता हूं. डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए. अच्छा, कुछ बुक वाले इससे ऐसे लिखते हैं, दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ बी. इज दैट करेक्ट? दिस इज योर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी. क्लियर हो गया. ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े. ये यहां पे है, देख रहे हो ना. The determinants of a product of the matrices is equals to the product of their respective determinants. Like this is I'm talking about. Determinant of AB equals to determinant of A times determinant of B. Clear है ना? Right? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट. राइट, एक और रिजल्ट लिखने वाला हूं मैं. नेक्स्ट रिजल्ट है, रिजल्ट होगा डिटर्मिनेंट ऑफ, ये भी एक रिजल्ट है,
डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1, वेयर n क्या होता है, दिस हैज टू बी ऑर्डर ऑफ, इट्स है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस, राइट ना, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, क्लियर है, राइट। क्या लिखा हूं, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1, क्लियर है, राइट, ठीक है। देख जाओ इसको, राइट, आगे बढ़े। ठीक है। अच्छा, आप चाहो तो इसका वेरिफिकेशन भी हम लोग कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट तो नहीं है वेरिफिकेशन, लेकिन चलो मैं करा देता हूं, ठीक है। देखो, वी हैव a टाइम्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ a इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a टाइम्स ऑफ i, मैंने लिखवाया था, याद है ना, राइट ना। अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट ले लूं तो डिटर्मिनेंट का डिटर्मिनेंट तो डिटर्मिनेंट ही हो जाएगा, राइट ना। अगर मुझे इसको लिखना हो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, दिस हैज टू बी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, राइट। अगले स्टेप में इसको थोड़ा मैं और आगे बढ़ाता हूं, इक्वल्स टू आई विल से डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्लियर है, राइट ना। अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट लेता हूं अब, तो इसका हो जाएगा दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, ना समझ में पूछना, इज दैट करेक्ट, ओके। एक काम करते हैं, इससे कॉमन ले लो। मैंने बताया था कि when we are taking the common from the determinant ना, that element will be the common from either of the row or from the columns। तो यहां से एक काम करो, डिटर्मिनेंट है कॉमन लो R1 से, कॉमन लो R2 से और कॉमन लो R3 से। सो यू विल राइट हियर डिटर्मिनेंट ऑफ A into डिटर्मिनेंट ऑफ A into डिटर्मिनेंट ऑफ A, मतलब we take out डिटर्मिनेंट ऑफ A common from R1 R2 and R3, या ये भी बोल सकते हो कि we take out the determinant A common from C1 C2 और and C2 and C3, राइट ना। तो यहाँ पे आपके पास होगा जी, दिस इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। देन आई विल से दिस हैज टू बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल क्यूब और डिटर्मिनेंट ऑफ दिस विल बी इक्वल्स टू 1 हो जाता है। सॉरी, नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट है वो दिस हो गया। सो आई विल से डायरेक्टली हियर द डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर, गॉट इट ना, ये होता है, दिस इज द वेरिफिकेशन। अभी तो फिलहाल ये देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ, और यहां पे क्या लिया था, वी हैव फॉर 3x3 मैट्रिक्स, राइट ना, ये 3x3 मैट्रिक्स के लिए लिया, राइट ना। तो इस तरह से फॉर n×n मैट्रिक्स के लिए कर सकते हो, देयरफॉर फॉर n×n मैट्रिक्स, राइट, डायरेक्टली आई विल से द रिजल्ट, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A टू द पावर n-1, ये रिजल्ट आपको याद करना पड़ेगा। देख जाओ, देख, कोई डाउट है तो पूछो। ये देख रहे हो ना, 3x3 के लिए लेके चल रहे थे, तो 3x3 अगर चल रहा था तो डिटर्मिनेंट की पावर कितनी आ रही थी, 2 आ रही थी। अगर ये आपने 4x4 लेके चलते तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ A का क्यूब आता। अगर 5x5 मैट्रिक्स लेके चलते तो डिटर्मिनेंट ऑफ A टू द पावर 4 आता। तो ऐसे ही अगर फॉर n×n मैट्रिक्स के लिए लेके चल रहे होगा तो यू विल फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A टू द पावर n-1, मतलब एक कम आएगा। क्लियर हो गया, आगे बढ़े, देख जाओ, कोई डाउट है तो पूछो, पूछ लो, पूछ लो भाई, पूछ लो, आगे बढ़े।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो नाउ दिस इज क्लियर राइट ना। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट होगा, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट होगा राइट ना। क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस होंगे मैं जो कराऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल इसी को अभी देख लेते हैं। ये मैंने आपको कराया था जी, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट, देख जाओ, ये हमने डिस्कस कर लिया था। और फिर उसके बाद से बताया था इन जनरल इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन देन द डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1। ठीक है। नेक्स्ट थियरम इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट व्हिच आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर नाउ। ये फॉर्मूला भी डेराइव करता है, तो उसको एक बार देखते हैं। नेक्स्ट इज थियरम है a square matrix A is invertible if and only if it is non singular। क्या बोल रहा है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल तब होगा जब वो क्या हो, नॉन सिंगुलर हो। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, a square matrix A is said to be invertible if and only if A is non singular। ठीक है, चलो इसका प्रूफिंग कराता हूं मैं। A square matrix say A is said to be invertible if and only if it is नॉन सिंगुलर राइट ना। अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगा तो दे मस्ट बी नॉन सिंगुलर। ठीक है, प्रूफ कराता हूं इसको। देखो इसमें दो कंडीशंस हैं। एक नेसेसरी कंडीशन क्या है कि अगर नॉन सिंगुलर होगा तो सफिशियंट कंडीशन होगा कि क्या होगा, वह इन्वर्टिबल होगा, या इसका इनवर्स बोल सकते हो, अगर कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो दे मस्ट बी नॉन सिंगुलर राइट ना। तो सबसे पहले जो इसको मैं प्रूफ करने के लिए नेसेसरी कंडीशंस बताना चाहूंगा कि इन्वर्टिबल होने के लिए मैट्रिक्स को क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर होना चाहिए राइट ना। सो लेट ए बी एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स राइट ना, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n राइट ना। let A be an invertible matrix of order n, है ना, and I be an identity matrix, है ना, I be an identity matrix of same order n, right ना, right ना। then there exists another matrix B of order n such that AB equals to BA equals to I। What it ना, this is the definition of invertible matrices right ना। necessary condition क्या लिया हूं कि A कोई एक invertible matrix of order n है और I एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर n है राइट ना। देन देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर B, then there exists another square matrix B of order n such that AB is equals to BA equals to I राइट ना। एक काम करते हैं जिसका डू डिटरमिनेंट ऑन बोथ द साइड्स, व्हेन आई विल डू द डिटरमिनेंट ऑफ बोथ द साइड्स, तो मैं इसको ले लेता हूं, सो दैट आई विल से द डिटरमिनेंट ऑफ I, है ना। या किसी ने ये भी बोल सकते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ BA इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ I राइट ना। तो डिटरमिनेंट ऑफ AB विल बी इक्वल्स टू आई विल से डिटरमिनेंट ऑफ, ठीक है ना, A इंटू डिटरमिनेंट ऑफ B इज इक्वल्स टू 1। या यहां से जाओगे तो यहां पे भी आप बोल सकते हो डिटरमिनेंट ऑफ B इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू 1। मतलब यू मस्ट से कि डिटरमिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल्स टू
जीरो, या यहाँ पे भी वही सेम कॉन्सेप्ट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, राइट ना। तो देखो यहाँ पे मैंने लिया था ना, यहाँ पे क्या कि लेट ए बी एन इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर एन, है ना। तो उस केस में अगर इन्वर्टिबल है तो वो नॉन सिंगुलर होगा। देखो मैंने प्रूफ किया। अच्छा इतना ही नहीं, ये मैट्रिक्स बी ही जीरो के बराबर नहीं, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ऑल्सो यू से द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी विल ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो। फिलहाल हम ए की इसलिए बात करते हैं कि हमने ए को इन्वर्टिबल माना है, देख लो ना। लेट ए बी एन इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ द ऑर्डर एन, तो उस केस में डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन सिंगुलर होगा, मैट्रिक्स ए क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है नॉट इक्वल टू जीरो होगा। सो दिस इज द नेसेसरी कंडीशन। एक बार देखो इसको कि किसी भी मैट्रिक्स को इन्वर्टिबल होना है तो वह नॉन सिंगुलर होएगा, ठीक है। देखो द नेसेसरी कंडीशन इज इफ एनी मैट्रिक्स इज टू बी इन्वर्टिबल दे मस्ट बी नॉन सिंगुलर, जो मैंने यहां पे लिखा है, ठीक है। अब मैं इसका सफिशिएंट कंडीशन प्रूव करने वाला हूं। नाउ आई विल डिस्कस द सफिशिएंट कंडीशंस ऑफ दिस वन which is here. Sufficient condition is what here कि अभी हमने आपको नेसेसरी कंडीशन में दिखाया था कि किसी मैट्रिक्स को इन्वर्टिबल होना है तो वह नॉन सिंगुलर होगा। अब यहाँ पे मैंने प्रूफ कर दिया है कि ये मैट्रिक्स क्या है, नॉन सिंगुलर है, राइट ना। तो नॉन सिंगुलर है तो इनवर्स होगा, और इनवर्स होगा तो इनवर्स की वैल्यू क्या आएगी मैं आपको वो दिखाने जा रहा हूं, राइट ना, ठीक है। Conversely, let A is non-singular, मतलब क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, क्लियर है। कन्वर्सली लेट मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो। अच्छा अभी आपने पढ़ा है वी हैव a times of adjoint of a equals to determinant of a times of I, क्लियर है ना, क्लियर है ना। एक काम करते हैं, डू डिटर्मिनेंट ऑन बोथ द साइड्स, दिस आई विल से डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ I, डायरेक्टली लिख दूं, कोई डाउट वाली बात, कोई डाउट वाली बात, राइट ना, राइट। अच्छा एक काम कर सकते हैं ना, हमने थोड़ा सा ना डिटर्मिनेंट लेने से पहले ना एक काम करो, अभी आप डिटर्मिनेंट डालो, आप एक काम करो इसको ना, अभी आप इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दो, क्या बोल रहा हूं, डिवाइडिंग बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोथ साइड्स। तो यहाँ पे ए टाइम्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम्स ऑफ आई, क्लियर है, लॉक कर दें, ठीक है। आप यहां पे भी लिख सकते हो ए टाइम्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू आई। एक काम कर रहे हैं जी, प्री मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स बोथ साइड्स, सो आई विल से ए इनवर्स टाइम्स ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन determinant of A equals to A inverse times of this. You know A inverse into A is equals to I. So I times of adjoint of A upon determinant of A equals to A inverse of A times of I. So ultimately I'll say the answer is here A inverse equals to adjoint of A upon determinant of A. देख जाओ, this is very important property to find the inverse of a matrix, right ना। A इनवर्स, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्टिबल मैट्रिक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल करके उनके डिटर्मिनेंट से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। अच्छा एक चीज देख लो ना, अगर ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो हो जाता तो ए इनवर्स नहीं निकलता, बिकॉज समथिंग अपॉन जीरो नॉट डिफाइंड, इसीलिए पहले ही लिखवा दिया था नेसेसरी कंडीशन में कि क्या ए को नॉन सिंगुलर होना पड़ेगा। मैंने देखो यहाँ पे सफिशिएंट कंडीशन लिया था, लेट ए बी द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तभी जाकर के इन्वर्टिबल होगा, अदर सिंगुलर होगा तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता, राइट ना। क्लियर हो गया, आगे बढ़े, आगे बढ़े, देख जाओ, देख लो भाई देख लो, ना समझ में आप पूछ जाओ,
आगे बढ़ते हैं। इजी टॉपिक है, इजी टॉपिक है। अगला यहाँ पे है क्वेश्चंस हैं, बट मैं डायरेक्टली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराता हूँ, है ना, क्योंकि ये तो एग्जाम्पल्स हैं, आप यहाँ से हेल्प लेकर के भी कर सकते हो, तो मैं इनके एग्जाम्पल्स दिखा रहा हूँ जी आपको। क्वेश्चन है जैसे एक्सरसाइज 4.4 में फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही है, 3 में भी यही है, इवन सेकंड में तो वेरीफाई करना है, ए टाइम्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए या एडजॉइंट ऑफ ए टाइम्स ऑफ ए इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए टाइम्स ऑफ आई, राइट, थर्ड एंड फोर्थ में। फिफ्थ क्वेश्चन में, सिक्स क्वेश्चन में, सेवेंथ क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन है इसमें हमने इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालनी है, राइट ना, 8, 9, 10 तक, इवन 11th ऑल्सो, राइट ना। एक काम करते हैं, एक ऐसा क्वेश्चन कराते हैं जिसमें पूरा ही कवर हो जाए, क्योंकि एडजॉइंट इनवर्स निकालेंगे तो उसमें एडजॉइंट भी निकलेगा। समझ में आ रही बात ना। क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 ये सारे, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 या 8, 9 में से कोई भी करा दूं ना, तो आपका 1, 2, 3, 4 ऑब्वियसली हो जाएगा, राइट ना। तो हम क्यों नहीं इसका सबसे अच्छा क्वेश्चन कोई कर लेते हैं। मुझे अच्छा क्वेश्चन 11th लग रहा है, लेकिन अगर आप लोग कहोगे तो मैं 8, 9, 10 में से कोई ये करा सकता हूं, बताओ आपकी चॉइस, कौन सा करें, कौन सा करें, ठीक है चलो 11th कर रहे हो ना, ठीक है 11th कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 11th बच्चे कर रहे हैं जी, लेट्स डू द 11th क्वेश्चन नाउ, ठीक है 11th करते हैं, इस पे मोहर लग रही है जी, 11th करना है, ठीक है देखते हैं। सी 11th क्वेश्चन है, एक्सरसाइज कौन सी है ये, एक्सरसाइज है हमारी 4.4.4.4, राइट ना, एक्सरसाइज 4.4 है जी, ठीक है एक्सरसाइज 4.4, exercise 4.4 and I'm going to do the question number 11th, right। से a equals to मैं मान ले रहा हूं 1, 0, 0, 0 cos alpha sin alpha 0 sin alpha and this has to be minus cos alpha, right। मैट्रिक्स a दे रखी है और इसका हमें क्या निकालना है, इनवर्टिबल मैट्रिक्स निकालना है। वी नीड टू गेट द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स, हमें ए इनवर्स निकालनी है जिसका, क्या निकालनी है, ए इनवर्स पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपने पता है क्या टेस्टिंग करो कि ये डिटर्मिनेंट सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो सिंगुलर या नॉन सिंगुलर के लिए क्या निकालना होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना होता है, ठीक है निकालो। दिस हैज 1, 0, 0, 0 cos alpha sin alpha 0 sin alpha minus cos alpha, क्लियर है। डिटर्मिनेंट ले लिया, आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि वी एक्सपेंड अलोंग दैट रो और दैट कॉलम वेयर देयर इज द मैक्सिमम जीरोस इन रोज और इन द कॉलम्स, राइट ना। तो आपकी चॉइस है, कैसे भी एक्सपेंड कर सकते हो, लेकिन मैं कहूंगा या तो आप R1 के थ्रू जाओ या C1 के थ्रू जाओ, इजियर होगा, ठीक है ना। अब ऐसे भी हॉरिजेंटल चलना ज्यादा इजी होता है, तो मेरी एडवाइस अगर आप मानो तो आप R1 के अलॉन्ग एक्सपेंशन करो। लिख रहा हूं एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1, राइट ना, डायरेक्टली लिख दूं माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। चमक रहा है, चमक रहा है, चमका चमका या नहीं चमका, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, दैट हैज टू बी माइनस ऑफ 1, राइट ना। तो आपको यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू -1, इंप्लाइज यू मस्ट से ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। देख जाओ, सबसे पहले क्या करना होता है, जो भी मैट्रिक्स दिया गया हो, एंड इफ यू आर गोइंग टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स, you first find the determinant of that matrix and you check it whether the given matrix is to be singular or non-singular. If they are to be non-singular, then we will proceed for the A inverse. Clear है। अब हमारे पास यहाँ पे determinant of A -1 आ गया, then I'm going to find the determinant of the invertible matrix, right ना। तो हम आगे इसी पे काम करेंगे।
मैं डायरेक्टली निकाल रहा हूँ जो एडजॉइंट ऑफ ए। आप एग्जाम के लिए ट्राई करोगे, अगर ऐसे करोगे तो आपकी एक्सपर्टीज काफी अच्छी होगी। देखो क्या कर रहा हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 and this is to be A33 का ट्रांसपोज, राइट। क्योंकि ये जो मैट्रिक्स थी वो कितने ऑर्डर की थी, 3x3 मैट्रिक्स थी, राइट ना। इट्स द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। तो जितने मैट्रिक्स हैं उतने ही कोफैक्टर्स या उतने ही माइनर्स होंगे, राइट ना। तो सबसे पहले मैं निकालने जा रहा हूं A11, चलो ध्यान देना, A11 यहां से इस एलिमेंट का कोफैक्टर्स चाहिए, ये और इसको ड्रॉप करोगे, राइट ना। तो कितना हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा आएगा ना, दिस इनटू दैट। सो आई विल से इट्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, फिर माइनस कॉमन ले लोगे, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, दिस इज माइनस ऑफ 1। और आपको पता है सर A11 इक्वल्स टू -1 टू द पावर 1 प्लस 1 ऑफ M11, क्योंकि कोफैक्टर्स निकालने के लिए आपको माइनस निकालना होता है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो कोफैक्टर में 1 1 का सम है वो इवन है, तो उस केस में जो माइनर होगा वही हमारा क्या होगा, कोफैक्टर्स होगा। तो इसके जो माइनर्स आ रहे हैं ना, दिस इज अबाउट योर माइनर्स। ये आपका M11 निकला है जी, M11 -1 आ रहा है, तो -1 इज योर कोफैक्टर्स, राइट ना। सो आई विल से दिस इज हियर माइनस ऑफ 1। इसका देख लेते हैं, A12 देखो, A12 इसको मैं मिटा दे रहा हूं, A12 यहीं पे दिखा दूंगा, A12 इसका दिस और दिस को हटा दो, 0 होगा, देख रहे हो ना, दिस टाइम्स ऑफ दैट, 0 टाइम्स ऑफ माइनस कॉस अल्फा इंटू 0 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा, सो दैट कम्स टू बी इक्वल्स टू 0। सर मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ऐसी कोई बात है क्या, पक्का नहीं समझ में आ रहा है, बोल दो, समझ में नहीं आ रहा है क्या, आ रहा है, वेरी गुड, ना समझ में पूछना, I'll be happy to explain why 1 plus 1 is 2, but the thing is you have to ask. Without your asking, I can't just see whether your questions is you understand or not, right ना? So you must ask. Clear है? Next देखते हैं जी, आगे आ जाओ। यहाँ पे हमने निकालनी है A13, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्या कोफैक्टर्स निकालनी है। 0 टाइम्स 0 आ रहा है, -0 है तो कोफैक्टर्स भी 0 ही होगा, तो मैं यहाँ पे 0 लिखता हूं। कोई गुस्सा करने वाली बात हो तो बताओ, गुस्सा करोगे आप, गुस्सा कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, यार मैं मजाक कर रहा हूं, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने क्या निकालनी है, हमने निकालनी है A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का डिटर्मिनेंट, राइट ना। इसको मिटा करके मैं दिखा देता हूं आपको थोड़ा सा। ये कई बुक वाले पता है, कई स्टूडेंट्स पता है क्या करते हैं, A11 अलग निकालते हैं, A22 अलग निकालते हैं, वो भी ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा वो लगता है पता है क्या, वो अनाड़ी टाइप पे लगता है, मतलब वो लर्नर टाइप पे लगता है। एंड आपको मैं ये मान के चलता हूँ यू आर द एक्सपर्ट्स, राइट ना। ऐसे लिखोगे तो टीचर को समझ में आएगा यार बच्चे को डेप्थ में आती है, राइट ना। A21 सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, फिर से 0 लिख दूं। A22 होगा, देखते हैं A22 क्या होगा, A22 बताओ, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम माइनस कॉस अल्फा होगा, राइट ना। देखो ना यहाँ पे, अरे इसका पूछ रहा हूं कॉस अल्फा, राइट ना, इसका माइनर पूछ रहा हूं, तो माइनर कितना हो जाएगा, माइनस कॉस अल्फा, राइट ना। और A22 का सम क्या है हमारे पास, 2 और 2 का सम इवन है, तो जो माइनर होगा वही हमारा क्या होगा, कोफैक्टर्स होगा। तो आई डायरेक्टली राइट हियर इट्स माइनस कॉस अल्फा। क्लियर हो गया, ठीक है। A23 भी निकाल लो, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो ये साइन अल्फा आ रहा है जी, साइन अल्फा आ रहा है, लेकिन ये निगेटिव के साथ जाएगा, राइट ना। पता है क्यों, क्योंकि 2 3 है, 2 और 3 का सम ऑड होता है, तो जो माइनर्स होगा, जो कोफैक्टर होगा वो नेगेटिव ऑफ माइनर्स होगा, तो माइनर मेरा आ रहा है साइन अल्फा, तो कोफैक्टर क्या हो जाएंगे, माइनस साइन अल्फा। क्लियर है, आगे बढ़े। A31 बताओ, A31 यार, A31 नाउ, A31 थर्ड रो फर्स्ट
कॉलम, 0 टाइम्स 0 0 हो जाएगा, राइट ना। अगला बताओ A32, A32 बताओ, सेकेंड रो सॉरी थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, साइन अल्फा आ रहा है ना। बट चूंकि आपको पता है सर 3 + 2 5 होता है, सम ऑड आ रहा है तो नेगेटिव माइनस विल बी द कोफैक्टर्स, राइट ना। तो हमारे पास क्या रहता है, साइन अल्फा रहा था तो माइनस साइन अल्फा लिखेंगे, राइट ना, माइनस साइन अल्फा लिखोगे, राइट ना। और एक और है A33 नाउ यू फाइंड इट, A33 निकालो, A33 दिस एंड दिस कॉस अल्फा होगा जी, कॉस अल्फा ही रह जाएगा। आई होप इट्स क्लियर, समझ में आ रही बात ना। और इसका क्या निकालना है मुझे, ट्रांसपोज निकालने, निकाल लो ट्रांसपोज। ये -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, 0 माइनस साइन अल्फा और दिस इज टू बी कॉस अल्फा। ट्रांसपोज निकाल लिया जी, मतलब रो को कॉलम में मैंने इंटरचेंज कर दिया। सो दिस इज अबाउट योर एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर है, क्लियर है। हमने क्या निकालनी है, ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना था, 1/-1 था, एंड दिस थिंग्स द सेम, राइट ना। तो ये क्वेश्चन में डायरेक्टली माइनस से मल्टीप्लाई करो क्योंकि ये मैट्रिक्स है, एंड व्हेन वी आर मल्टीप्लाइंग एनी एलिमेंट विद द मैट्रिक्स, दैट एलिमेंट विल बी द मल्टीपल ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। तो डायरेक्टली आई विल से दिस आंसर विल बी 1 0 0 0 cos alpha sin alpha 0 sin alpha and here is to be minus cos alpha. I think this will be the answer. चेक कर लो, राइट ना, ये होगा जी। देखो नोट डाउन कर सकते हो, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर सकते हो, कर लो। अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 1 इजिली बना लोगे, क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, 4 5 6 7 8 9 10 11 तो मैंने करा ही दिया। 12th देख लो, 12th में अच्छा चलो नोट डाउन कर लो, पहले नोट कर लो पीछे वाला। देखो ये रहा, ए मैट्रिक्स था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाले, -1 आया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए -1 है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो आप कह रहे हो यहाँ पे यार यू आर सेइंग द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ए इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, नॉन सिंगुलर हो गया। तो नॉन सिंगुलर होने के बाद मैंने डायरेक्टली इसका क्या निकाला, एडजॉइंट। आप कोशिश करोगे एग्जाम के लिए कि आप ऐसे जाओगे ना, टीचर खुश रहेगा। कई स्टूडेंट्स पता क्या करते हैं, A11 अलग निकालेंगे, A12 वो भी ठीक है, एक तो टाइम लेगा, टाइम तो वही लेता है, कॉपी में स्पेस ज्यादा लगेगा। A11 निकालोगे, A12 निकालोगे अलग से, थोड़ा केयरफुल होकर के अगर आप इसको सॉल्व करो यही पे ना, तो आपको टीचर से रिगार्ड मिलेगा, हाँ बच्चे को डेप्थ में आती है, वो आपसे पंगा नहीं लेगा। आप एग्जाम में आपको क्या करना होता है ना, बेस्ट रिप्रेजेंटेशन देना होता है। आप एक दिन के लिए ऐसा होता है ना कि एक दिन के लिए आप टीचर बनते हो और टीचर क्या होता है, मास्टर वो होता है, स्टूडेंट होता है। जैसे अगर आप खुद सोचो, अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जी, आपको समझ में नहीं आएगी, क्या अगले दिन से क्लास लोगे, क्या लोगे, पक्का नहीं लोगे ना। वही चीज होती है, एक दिन के लिए आपके लिए वो स्टूडेंट होगा और आप क्या होगे, टीचर होगे। तो आप अपना बेस्ट दोगे तभी जाके उसको समझ में आएगा, जितना अच्छा लिखोगे उतने अच्छे आपको मार्क्स देंगे, ठीक है। मेथडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेप्स के मार्किंग होती है, स्टेप्स के मार्क्स होते हैं। कुछ नहीं करो, सिर्फ आप मेरे जो क्वेश्चंस हैं, इवन दिस क्वेश्चन, और हर एक चैप्टर के बाद मैं आपको 5-5 टेस्ट पेपर्स दूंगा। आफ्टर एवरी चैप्टर आई गिव 5 टेस्ट पेपर्स, और मैं इतना आपको जरूर कहूंगा आप मेरे वो 5 टेस्ट पेपर्स कर लेना, और ये जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं इंक्लूडिंग दिस विद सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऑल्सो, राइट ना। इसके बाद मैं मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको 5 टेस्ट पेपर्स दूंगा। हाँ, हर एक टेस्ट पेपर्स में 10-10 क्वेश्चन होगा, 10-12 ऐसे ही कुछ क्वेश्चन होगा, डिपेंड ऑन द कि कितना लेंथी है, कितना उसका लेंथ क्या है, चैप्टर की लेंथ क्या है, राइट ना। बट entirely that 5 chapter will cover the entire topic of the given chapters and guaranteed you score more than of 95% if you do whatever I am teaching you. NCERT, some extra questions including my test papers, that is more than sufficient to score 90% or 95+%, right ना। हाँ जी, ठीक है, आगे बढ़े। हर एक क्वेश्चन को मैं टच कर रहा हूं यहाँ पे, आप देख रहे हो, ठीक है, आगे बढ़े, डन, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12th हो जाएगा ना, क्या करना, ए को बी से मल्टीप्लाई करें और इजी है, ये 2x2 मैट्रिक्स है। ए और बी कोई मैट्रिक्स होगा, उसका हमने क्या निकालना है, इनवर्स निकालना होगा। इवन ये देखो ये प्रॉपर्टी भी हो जाती है। आपको पता ना कि सर ए और बी का जो ट्रांसपोज होता था, ए और बी का जो ट्रांसपोज होता था वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता था, राइट ना। और ये भी एक रिजल्ट याद कर लेना कि ए बी का जो इनवर्स है ना जी, दैट हैज टू बी बी इनवर्स टाइम्स ऑफ ए इनवर्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये प्रूफ ही नहीं है, ये वेरिफिकेशन भी है, राइट ना। ये एज अ रिजल्ट भी यूज करेंगे, ए बी का इनवर्स जो है बी इनवर्स टाइम्स ऑफ ए इनवर्स होगा। तो आप ए को बी से मल्टीप्लाई करना, ए बी एक मैट्रिक्स आएगा, उसका इनवर्स मैट्रिक्स निकाल लेना, एलएचएस हो गया। आरएचएस के लिए क्या करना, बी इनवर्स निकालो और ए इनवर्स निकाला, दोनों मैट्रिक्स होंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, यू गेट द रिजल्ट। क्लियर है, क्लियर है, आगे बढ़े। अच्छा 13th क्वेश्चन है, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट ना। ये तो आसान लग रहा है। ए मैट्रिक्स दे रखा है और शो करना है जी ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7 आई टाइम्स ऑफ 0। अच्छा आरू साहब बताओ आई मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या होगी। हाँ बिल्कुल सही कर रहे हो, ये कह रहे हैं 2x2, बिल्कुल सही कर रहे हो, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि मैट्रिक्स एडिशन या मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन में दोनों ऑल मैट्रिक्स की, ऑल टर्म्स के मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या होती है, सेम होती है। सो आई मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 होगा, I2 होगा, ठीक है। तो आप ए स्क्वायर निकाल लेना, -5a और प्लस 7i करना, डेफिनेटली दैट कम्स टू बी इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। अच्छा इसके बाद आप देख रहे हो एंड हेंस कह रहा है, हेंस का मतलब इसको यूज करके, बाय यूजिंग ऑफ दिस यू नीड टू गेट द ए इनवर्स, राइट ना। मैं इसको दिखा देता हूं, इवन आप इसको डायरेक्टली ए इनवर्स निकाल लोगे, निकल जाएगा। ए इनवर्स निकालने के लिए इससे डायरेक्टली ए इनवर्स निकल जाएगा, लेकिन एक्चुअली वो आपसे ये नहीं पूछना चाह रहा है। हेंस का मतलब देखो, इससे आप ए इनवर्स डायरेक्टली निकाल लोगे। कलर चेंज करने में दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो आप इससे ए इनवर्स निकाल लोगे, लेकिन आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आपको ए इनवर्स डायरेक्ट निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए नहीं करना है। हेंस का मतलब होता है कि इसका यूज करके आपको ए इनवर्स निकालना है, राइट ना। चलो मैं दिखा रहा हूं जी आपको। हियर इज इट्स ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल्स टू null matrix, it's given. Clear, clear. So now this is a square minus 5a equals to minus 7 times of identity matrix लिख दूं, समझ में आ रही बात। आगे बढ़े, देख लो जी, देख जाओ, ना समझ में पूछ लो। अब एक काम करते हैं जी, a कॉमन ले लो, when I'll do the a is common, so a minus 5 times of identity matrix equals to minus 7 times of I। हाँ ए जब कॉमन लोगे ना, हाँ बिल्कुल सही करो, जब ए कॉमन लोगे ना तो ये ए क्या है, हमारे पास मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स को जब मैट्रिक्स से डिवाइड करते हो तो मैट्रिक्स ही आता है। अरे यार ये बताओ ना, आप एक शुगर का छोटा सा टुकड़ा खाओ या एक बड़ा सा टुकड़ा खाओ, क्या दोनों की प्रॉपर्टी में चेंजेस आते हैं, क्या दोनों तो मिठाई होगा, वही चीज है। आप जब डिटर्मिनेंट से डिटर्मिनेंट को कॉमन लेते हो ना तो डिटर्मिनेंट ही आएगा। जब आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए को डिटर्मिनेंट सॉरी मैट्रिक्स ऑफ ए को, क्या बोल रहा हूं, मैट्रिक्स ऑफ ए को अगर मैट्रिक्स ऑफ ए से डिवाइड करते हो ना जी तो मैट्रिक्स ही आता है। मैट्रिक्स ऑफ ए को मैट्रिक्स ऑफ ए से डिवाइड करते हो तो मैट्रिक्स ही आता है। यहाँ पे मैट्रिक्स क्या होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, हाँ वही लिखा है, वही लिखा है। क्लियर है, समझ में आ रही बात, आगे बढ़े, ठीक है। देखो यहाँ पे अब मैं क्या कर रहा हूं ना जी, प्री मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स कर रहा हूं। दिस हैज टू बी -7 a inverse times of I। आपको पता है सर दिस विल बी इक्वल्स टू ऑफ I, सो दिस इज a minus 5I इक्वल्स टू -7 a इनवर्स, व्हाट इज ना, टाइम्स ऑफ I भी लिख लो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो वही आता है। सो आई विल से दिस इज a minus 5I इक्वल्स टू -7 a इनवर्स। सो फाइनली आई विल गेट इट, दिस a इनवर्स इज इक्वल्स टू -1/7 टाइम्स ऑफ a minus 5 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी। तो आपके पास ए भी है, चलो मैं ऐसे ही निकाल दे रहा हूं, -1/7 रखो। ए क्या है हमारे पास, ए बोले तो -1 एंड दिस इज 2, -5 टाइम्स ऑफ दिस इज 1 0 0 एंड 1। क्लियर हुआ, बोल दो, नहीं समझ में आया तो पूछ लो। अब आप इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर देना, जो आएगा उसको रिजल्ट से 1/7 से मल्टीप्लाई कर देना, यू गेट द रिजल्ट, आ जाएगा ना। आगे बढ़े, ठीक है, गुड। नेक्स्ट इज नाउ
नेक्स्ट इज नाउ क्वेश्चन नंबर 14th। गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको अच्छे कैटेगरी में लेता हूं। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड ए एंड बी सच दैट दिस इज टू बी करेक्ट। इट्स सेइंग ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स और द नल मैट्रिक्स, राइट ना। ठीक है, आसान है। ए स्क्वायर निकालना आपको आता है, स्मॉल ए को एक एलिमेंट है, मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करना, स्मॉल बी कोई एक एलिमेंट है, उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना, ऐड कर देना, और जो आएगा उसको क्या करना, नल मैट्रिक्स से इक्वेट करवा देना। दो इक्वेशन शायद बनेंगे, आप दोनों को सॉल्व करोगे तो आपसे आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना। 15th क्वेश्चन एंड द 13th क्वेश्चन बोथ आर द सेम थिंग, राइट ना। इसमें भी कोई ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। देखो इसमें क्या कर रहा है, ए क्यू माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। एंड हैंस का मतलब होता है इनका ही यूज करके आपको ए इनवर्स निकालना, अभी मैंने बताया था ना। आप इसको चाहते हैं ना डायरेक्टली, अगर ये नहीं दिया होता और पूछता फाइंड ए इनवर्स, तो फिर आप उस केस में एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए करके इसका आंसर आप निकाल सकते थे। बट चूंकि यहाँ पे आपसे स्पेसिफिकली पूछ रहा है यू डू विद द हेल्प ऑफ दैट, तो आपको इसको इक्वेशंस के हेल्प से ही निकालना, जो रिजल्ट हमारे पास है उसके हेल्प से निकालना है। थोड़ा सा मैं हेल्प कर दे रहा हूं, बाकी आप कर लेना। ए क्यू माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स, ये है ना। ये काम करो, 11i को राइट साइड में ले जाओ, क्लियर है। नाउ यू टेक आउट a कॉमन, this has to be a square minus 6a plus 5i equals to minus 11i, clear। प्री मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स कर रहा हूं, क्लियर है। यू नो ए स्क्वायर टाइम्स ऑफ ए इक्वल्स टू आई, गॉट इट ना। तो ए इनवर्स इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 11 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 5i, ठीक है। ए स्क्वायर आपके पास ऑलरेडी निकला होगा जब वेरिफिकेशन कर रहे होगे तो, राइट ना। अरे ए क्यूब तक जाना है तो ए स्क्वायर तो अल्टीमेटली निकला होगा, तो ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i की होगा, नल मैट्रिक्स आ गया होगा। उसके बाद से ए इनवर्स निकालने के लिए इसमें क्या कर, ए इनवर्स निकालने के लिए ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 5i कर लेना, ये एक मैट्रिक्स आएगी, जो आएगा उसको माइनस 1 अपॉन 11 से क्या करना, मल्टीप्लाई करना। क्वेश्चन 16th, क्वेश्चन इवन 15th, दिस इज ऑल्सो द सेम थिंग, राइट ना। 15th और 16th भी आपका सेम ही होगा, क्लियर है ना, हो जाएंगे ना। आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है। अच्छा ये देखो तो 17th क्वेश्चन अभी बताया था, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है ना। बताया था ना डिटर्मिनेंट ऑफ ए का, अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n था तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे n के जगह पे क्या है, 3 है, देख रहे हो ना, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स मीन n इज इक्वल्स टू 3 है, तो आ गया। अच्छा हाँ, ये भी देखा एज अ रिजल्ट लिख लेना, क्या लिख रहा है यहाँ पे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, राइट ना, राइट ना, गॉट इट। कोई डाउट, बी इज द राइट आंसर। तो इस तरह से हमने ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली है। एक बार देखो इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगा, क्योंकि कभी कभी वो भी ना 1 मार्क क्वेश्चंस के लिए आते हैं जी, तो मैं इसको करा देता हूं, ठीक है। मैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है जो मैं अपने पास से कराऊंगा, मैं इसीलिए आज लेकर के आया हुआ हूं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है हमारे पास और कुछ रिजल्ट्स भी हैं, राइट ना। इसके बाद से हमारा ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म भी हो गया, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स करना है। एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स में इक्वेशन से हमने वेरिएबल्स जो होंगे उनकी वैल्यू निकालनी होगी। बट बिफोर स्टार्टिंग ऑफ दैट ना, मैं आपको कुछ रिजल्ट्स बताना चाहूँगा।
डिटर्मिनेंट, ठीक है। कुछ रिजल्ट्स लिख लो, उसके बाद से फिर आगे बढ़ेंगे। रिजल्ट है चैप्टर ग्लांस के फॉर्म में कर सकते हो, चैप्टर ग्लांस, राइट। पहला मैंने आपको बताया था डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, राइट ना। अगला क्या बताया था, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1। हाँ, ए टाइम्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए या एडजॉइंट ऑफ ए टाइम्स ऑफ ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए टाइम्स ऑफ आई, ठीक है ना। अगला है एक और भी अभी लिखवाया हूं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, राइट ना। अगला, हाँ, ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला तो बताइए दिया, ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगला, ए इनवर्स का इनवर्स ए के बराबर होगा, राइट ना। ए इनवर्स का इनवर्स ए के बराबर होगा, राइट ना। अगला, ए ट्रांसपोज का इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ये भी होता है ठीक है, राइट। हाँ, अगला प्रॉपर्टी, एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ बी टाइम्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। दिस हैज एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ बी टाइम्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। हाँ हाँ, सारे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं, दे ऑल आर ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, राइट ना। नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट ना। ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट ना। एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ बी टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, राइट ना। अगला, अगला एडजॉइंट ऑफ ए, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है भी। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए। प्रूफिंग है, लेकिन एक्चुअली ना हम लोग इसको आईआईटी वगैरह में बहुत डिटेल में करते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में तो कुछ भी नहीं दिया हुआ, बट एक्चुअली होता है क्या ना, क्वेश्चन आपका जो एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनता है ना, जो 82, 85, 90% क्वेश्चन बनते हैं, बट कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी होते हैं जो चैलेंजिंग होता है। जैसे इसी साल, हाँ, 2024 में ये क्वेश्चन आ गया था, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स रूट में x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2, ऐसे कुछ करके अच्छा क्वेश्चन था। उसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन थे, वो डायरेक्ट नहीं हो पा रहा था, तो एक दो क्वेश्चन चैलेंजिंग मिलेंगे। इवन आप देख रहे हो ना, इस साल फिजिक्स में 12-13 क्वेश्चन ऐसे आए थे जो थोड़ा बाहर के थे। हाँ, तो कुछ मिलते हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ, इसको याद कर लो, बेटर होगा। हाँ, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू, डायरेक्टली राइट हियर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़े। आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, राइट ना, राइट ना, दिस बोथ आर द सेम थिंग, राइट ना, दिस बोथ आर द सेम थिंग, राइट ना। ठीक है, नोट कर लो यहां तक।
इसके बाद मुझे नहीं लग रहा कि इसके बाहर के क्वेश्चंस प्रॉपर्टीज में है। ठीक है, हाँ, ये सारे प्रॉपर्टीज आप नोट डाउन कर सकते हो, कर लेना। इसमें अगर, हाँ, अगर आप बात कर रहे हो, देखो ये आपके एनसीईआरटी में है, ये है, ये है, ये है, दिस है, ठीक है, ये भी है, क्वेश्चन में ये भी यूज हुआ है, ये भी यूज हुआ है, ये भी है, ये दोनों नहीं है, ये दोनों नहीं है, बट इससे भी क्वेश्चन उठते हैं, राइट है। तो चैप्टर ग्लांस में आप इसको नोट डाउन कर लो। अब हम क्वेश्चंस करेंगे इसके, ठीक है, नोट करो इसको। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, हो गया, आगे बढ़े। हाँ, ए एंड बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होंगे, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑब्वियसली डिटर्मिनेंट की बात हो रही है तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, और इसमें नॉन सिंगुलर की बात हो रही है। क्लियर है, आगे बढ़े। राइट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्टम 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 नेक्स्टम। हाँ, कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन मैं कराता हूँ, ये बाहर का क्वेश्चन है बट अच्छा क्वेश्चन है। बाहर नहीं मतलब ये, हाँ, एनसीईआरटी से बाहर है बिल्कुल। देखो जी, 2007 का क्वेश्चन है, सीबीएसई का ही क्वेश्चन है, दिया हुआ है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन में लिख लेना इसको। इट्स गिवन ए इक्वल्स टू, मैट्रिक्स है 2 -3 3 and 4, राइट ना, सटिस्फाइंग ये जो मैट्रिक्स है ना, एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। वो इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर -6x + 17 = 0। फाइंड ए इनवर्स, ए इनवर्स इज क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हाँ, अच्छा, ये देख रहे हो यहाँ पे हेयर, मैं सोल्यूशन ले रहा हूँ जी। हेयर मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइज इक्वेशन ए स्क्वायर, सॉरी, satisfies equation x square -6x + 17 = 0. It means I'll say this is a square -6a + 17i is equals to 0। आ गया ना, हो जाएगा सॉल्व ना। अरे यहाँ पे जो मैट्रिक्स है ना, यहाँ पे, हाँ, ये मैट्रिक्स है, इस इक्वेशन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे 17i, क्योंकि जब मैट्रिक्स आएगा तो आपको मैंने बताया था कि मैट्रिक्स में मैट्रिक्स का ही एडिशन करते हैं। हाँ, वही चीज हो गई ना, बिल्कुल सही कह रहे हो। अरे आप ये बताओ ना, वाटर में क्या आप ऑयल को मिक्स कर लोगे क्या? नहीं होगा ना, दे आर टू बी सेपरेटेड आउट। तो वही चीज है यहाँ पे, जब आप मैट्रिक्स यहाँ पे दे रहे हैं कि ए इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो जब आप ए को रखोगे ना तो यहाँ पे 17 कांस्टेंट नहीं होगा जी, 17i बनेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी, राइट ना, वही लिखा है मैंने। क्लियर हो गया? इसके बाद तो आसान है ना, हो जाएगा ना। दे आर आस्किंग ए इनवर्स, तो आप इसको ट्रांसफर कर लेना, फिर इनवर्स निकाल लेना, निकल जाएगा ना। आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है, अगला क्वेश्चन। देता हूं अगला क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्या है, ए इक्वल्स टू है 0 1 3 1 2x 2 3 1, राइट। ए इनवर्स क्या है? ए इनवर्स इज इट्स 1/2 -4 5/2, राइट, -1/2 3 -3/2 1/2 y 1/2, yeah, this is। now they are asking find x and y, x और y निकालने हैं। हाँ, ठीक है, क्या करोगे? ए इनवर्स निकालो, ठीक है ना, निकल जाएगा ना, ठीक है, बिल्कुल सही करो। इसका ए इनवर्स निकाल लो, उसके बाद से क्या करोगे? इसको कंपेयर करवा दो, निकल जाएगा ना, निकल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर, अगला क्वेश्चन है
अच्छा, एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं, इसी में आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन है इफ, यहीं से ले लेता हूँ जी क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपके पास, इफ ए एक मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट्स हैं 3 0 -1 2 3 0 0 4 1, राइट ना। क्या क्या आपसे पूछ रहे हैं, फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। दूसरा है दूसरा है एडजॉइंट ऑफ ए आस्किंग। नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है ना, ये तीन चीज आपसे पूछ रही है, निकल जाएगा। ठीक है। देखो ओवरऑल आपने क्या करना है ना, इवन अगर आप इसकी बात करोगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1 मतलब 2 हो जाएगा, राइट। इसके लिए भी मैंने पीछे फॉर्मूला लिखवाया था, क्या बताया था बताओ तो, बताओ। हाँ देख लो, देखो, ये रहा, दिख रहा है, दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-2 टाइम्स ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-2 टाइम्स ऑफ ए। इसके लिए क्या बताया था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1 का होल स्क्वायर। तो फिलहाल n की जगह पे यहाँ पे तो 3 है ना, n की जगह पे 3 है तो 3 में से माइनस कर लो। यहाँ पे ना कितना हो जाएगा, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-2 3 - 2 टाइम्स ऑफ ए। यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ n-1 मतलब 3 - 1 का होल स्क्वायर। मतलब ओवरऑल इवन आप इसको लिख सकते हो यहाँ पे, दिस हैज टू बी इट्स योर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए आएगा ना। अरे 3 - 2 is 1 एंड दिस इज योर व्हाट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर 4 आएगा ना। मतलब ओवरऑल आपने क्या करना है, इससे डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है कैसे भी। whenever you get the value of determinant ना, you get the solutions, right ना। निकाल लो, निकल जाएगा। ठीक है, चलो निकाल लेते हैं। किसके अलॉन्ग एक्सपेंशन चाहते हो, R1 या C1? C1, ठीक है, C1 के अलॉन्ग करते हैं, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C1, सही है। आप इवन C1 R1 R2 C3 इन चारों में कहीं से भी करोगे सेम प्रोसेस, सेम इजियर होगा, राइट ना। तो मैं C1 का अबाउट चल रहा हूं, 3 लिखते हो, ये और ये नहीं लिखोगे, राइट ना, 3 ही आएगा, राइट ना। 2 पोजीशन बताओ, 2 का क्या है, ऑड है या इवन है, A21 नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव के साथ, ठीक है। जो एलिमेंट लिखोगे करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को एलिमिनेट करो, क्या हो जाएगा, +4 होगा ना। अरे ऊपर जाएगा तो -4 है लेकिन प्लस हो जाता है, राइट ना। क्लियर है, राइट ना। ये और ये नहीं लिया ना मैंने, ये और ये नहीं लिया, तो 0 टाइम्स ऑफ 1, ठीक है, समझ में आई बात ना। और 0 के साथ तो कुछ चलेगा नहीं, राइट ना। तो दिस हैज टू बी 9 - 8, वेरी गुड, 1 आ गया, 1 आ गया तो निकल जाएगा यहाँ पे, ये डायरेक्टली मैट्रिक्स 1 हो जाएगा, राइट। डायरेक्ट ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1, ठीक है ना। बस वही चीज है, क्या यहाँ पे हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर 1, ठीक है। ये अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा होगा एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ मैट्रिसेस, विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। और एक क्वेश्चन इससे गारंटीड 100% सेक्शन डी का क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का होता ही होता है, हर साल होता है जी, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट ना। तो इससे पहले वाले सारे टॉप क्वेश्चंस आपने कर लेना, जो भी डाउट्स होगा उसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। एंड आफ्टर फिनिशिंग ऑफ दिस चैप्टर आई विल गिव 2 टेस्ट। मैट्रिसेस का टेस्ट मेरा भूल गया था, मैं उसको भी मैं अपलोड करूंगा। 5 टेस्ट पेपर्स मैट्रिसेस के होंगे और 5 टेस्ट पेपर हमारे क्या होंगे, डिटर्मिनेंट्स के होंगे, राइट ना।
आप उनको कर लेना एंड गारंटीड यू विल स्कोर मोर देन ऑफ 90-95% प्लस। ठीक है, आप एक एक क्वेश्चन को थॉरोली अगर आप यहां से कर लोगे इंक्लूडिंग माई टेस्ट एंड ऑल, यू विल स्कोर अबाउट 90-95% प्लस। मैं इतने की श्योरिटी तो आपको देकर जा रहा हूं जी। एनसीईआरटी और मेरे असाइनमेंट मेरे इन द सेंस लाइक दिस, ये जो टेस्ट पेपर्स वगैरह हैं इसको आपने कर लोगे। हाँ, एग्जाम आएगा उस टाइम पे हम लोग टेस्ट पेपर्स भी करेंगे, नथिंग टू वरी अबाउट, 100% करेंगे, 100% बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। हाँ, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे, जैसे आपके पास कुछ सैंपल पेपर्स वगैरह होते हैं ना, उसको करना पड़ता है। हाँ, वो दिसंबर के बाद आता है, नवंबर दिसंबर में आ जाएंगे, उसको हम लोग कर लेंगे। कोई भी अरियंत की होती है, सिर्फ यूलाइक सैंपल पेपर्स होते हैं और सवाल होते हैं, बहुत से मार्केट में अवेलेबल होंगे, उस टाइम पे करेंगे, अभी नहीं। ठीक है, अभी आप सिर्फ एनसीईआरटी जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसको फॉलो करोगे, और जो मेरे टेस्ट पेपर्स होंगे 5 टेस्ट पेपर्स ऑफ ईच चैप्टर वो अपलोडेड होगा, यहाँ से उठाओगे उसको करोगे, जो डाउट्स होगा उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, कोई डाउट? ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू टीम एजुकेट।